سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ غزہ میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آزادی کی خوشیاں مان پڑ گئی ہیں۔ لاہور میں اقلیتوں کے قومی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن اپنی فوج سے مل کر غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے جو ظلم و ستم غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہماری یہ خوشیاں مان پڑ گئی ہیں، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو اسرائیلی حکومت اور وزیر اعظم نیتن جو اپنی فوج کے ساتھ مل کر جو ابھی کل کی بات ہے کہ فجر کے وقت نہایت مسلمانوں کے اوپر بمباری کی گئی اور وہاں پر مسلمان شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہوئے، اور دن رات یہ آگ ان پر برس رہی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ ادارے جو عالمی ادارے اسی وقت کے لیے دہائیوں پہلے مارز وجود میں لائے گئے تھے کہ دنیا میں امن قائم کریں، وہ قراردادیں پاس کرتے ہیں، اس کی ردی برابر بھی اس کی وقت نہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کی طرف سے مشرقی غزہ میں الطابعین سکول پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بے گھر افراد کو پناہ دینے والے سکول پر نماز فجر کے دوران حملہ ایک ہولناک، غیر انسانی اور بزدلانہ فعل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 100 سے زائد شہری جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ بے گھر افراد کو پناہ دینے والے سکول پر نماز فجر کے دوران حملہ ایک ہولناک، غیر انسانی، بزدلانہ فعل ہے۔ ترجمان نے کہا کہ شہری آبادیوں اور سہولیات کو اندھا دھند نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کو جنگی جرائم اور غزہ میں نسل کشی کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور اسرائیل کے حامی غزہ کی نسل کشی کے خاتمے اور غزہ کے عوام کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کریں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی طرف سے قائم کردہ ٹاسک فورس نے معیشت کی بہتری کے لیے 5 سالہ منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے جو 14 اگست کو جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ منصوبے کو اسٹیفن ڈرکن منصوبے کا نام دیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت ٹیکس ٹو جی ڈی پی 13.5% اور سرمایہ کاری اور برآمدات 15% تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ مجوزہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے سیاسی استحکام ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ مجوزہ معاشی ایجنڈے اور روڈ میپ میں 5 سالہ منصوبہ پیش کیا جائے گا جس میں سال 2028 تک سالانہ 6% معاشی ترقی کا ہدف تجویز کیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس منصوبے کے تحت 2028 تک برآمدات کا حجم $60 ارب تک لے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ مجوزہ پلان کے تحت نجی سرمایہ کاری کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ ترجیح قرار دی گئی ہے۔ اصلاحات پر کامیاب عمل درآمد سے سالانہ روزگار کے 10 لاکھ مواقع پیدا ہونے کا تخمینہ ہے۔ توانائی اور کاروباری لاگت میں کمی کی تجویز بھی شامل ہے۔ چین سے ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی اور چین کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کے ذریعے برآمدات کو فروغ دینے کا بھی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اور بنگلہ دیش کے مستعفی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنی حکومت گرنے کا الزام امریکہ پر لگا دیا۔ مستعفی ہونے سے پہلے حسینہ واجد کی تیار کی گئی تقریر کے اقتباسات بھارتی میڈیا پر آ گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تقریر میں حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ پر امریکی اڈہ بنانے کی اجازت نہ دینا اقتدار کے خاتمے کا سبب بنا۔ خلیج بنگال پر امریکی اثر رسوخ کی اجازت دے دیتی تو میرا عہدہ قائم رہتا، اگر مستعفی نہ ہوتی تو لاشوں کا انبار لگا ہوتا۔ ایسا نہیں چاہتی تھی بنگلہ دیشی شہری انتہا پسندوں کے ہاتھوں گمراہ نہ ہوں، عوام مایوس نہ ہوں۔ میری واپسی جلد ہوگی۔ طلبہ مظاہرین کو رضاکار نہیں کہا۔ طلبہ کو اشتعال دلانے کے لیے میرے الفاظ توڑ مڑوڑ کر پیش کیے گئے ہیں۔ 5 اگست کو فوج نے استعفیٰ لینے سے پہلے حسینہ واجد کی تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔
पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल करने और मुल्क का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। शाम ही से लोगों की बड़ी तादाद उनके अहल खाना, सूबाई वज़रा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदार एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गए थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने और आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम की आमद से कबल लोगों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट और उसके बाहर पहुंचना शुरू हो गई थी। पुलिस की भारी नफरी भी एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई थी। एयरपोर्ट के बाहर लोगों के ढोल की थाप पर भंगड़े। स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदार भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। सूबाई वज़रा अस्मा बुखारी, फैसल खोकर, शीजा फातिमा, राना मशहूद, साद रफीक, एहसन इकबाल भी उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचे। पुरजोश शायकीन कई मीटर लंबा और चौड़ा पाकिस्तानी परचम लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। लोगों का जोश और खरोश दीदनी था। पुलिस बैंड ने भी मिली नगमों के धुनें बजा बजाकर अरशद नदीम का भरपूर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि अरशद नदीम को वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ओलंपिक्स पर जाने से लेकर पेरिस तक हर तरह सपोर्ट किया गया। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा, अगले ओलंपिक्स में हम 10 गोल्ड मेडल्स लाएंगे। अरशद की तैयारी से लेकर जो ओलंपिक्स में जाने से पहले बाकायदा जो है वो पूरी पंजाब की स्पोर्ट्स बोर्ड, पूरी पंजाब की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वो अरशद के पास थी। अरशद ने उसको यूटिलाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आपने देखा। अरशद नदीम के साबिक कोच फयाज बुखारी का कहना था कि आज झूमने का दिल कर रहा है। अरशद के साथी जेवलिन थ्रू मोहम्मद यासर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अगली बार इसी तरह कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि अरशद ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जैसे झूमने को दिल कर रहा है। आपके सामने है कि इस वक्त हम ओलंपिक के गोल्ड मेडल नहीं, इसके हम लोग रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और अल्लाह ने इज्जत दी है। अरशद की वजह से जेवलिन को लोग जाने लगे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हमारे लिए एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अच्छा हो गया, सपोर्ट मिलेगी ज़्यादा। पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उनको फैसिलिटीज़ और दें तो और भी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में भी लोग जाके गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। आज रात और कल कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, जनूब मशरकी और बालाई सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का भी इम्कान है। कोहाट, करक, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, पिशावर, एबटाबाद और मानसहरा के बरसाती नालों में दोगयानी का खदशा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, तलागंग, चकवाल, मियांवाली में भी बरसाती नालों में दोगयानी का खदशा जाहिर किया गया है। और हालिया बारिशों के बायस सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तबाही। हर नाला आज़ाद कश्मीर में छत गिरने से 4 भाई दब गए। आस्तोर में भी सैलाबी रैला एक खातून और बच्चे को बहा ले गया। दरियाए सिंध के मुतादिद मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कोहे सुलेमान की बरसाती नदी नालों में जारी बारिश के बायस सैलाबी पानी की आमद जारी है। बलूचिस्तान में भी शगाफ अब तक पूर्ण नहीं किए जा सके। में वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। इलाका कशमत में सैलाबी रेले में बहकर खातून और बच्चा जा बहक हो गया। कई मकानात और गाड़ियां भी बह गयी। कई एकड़ फसलें तबाह हो गयी हैं। बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। हरनाला आज़ाद कश्मीर के इलाका पटार के एक घर की छत गिरने से एक भाई जा बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान के इलाका पारहोती में भी बारिश से मुतासरा घर की छत गिर गई। 5 अफराद जख्मी हो गए। सिंध में दरियाई सिंध की तहसील कंडियारों के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे से तिल, जवार, गवार समेत दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। गुड्डू बैराज में कशमोर के मकाम पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में 17,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। दरियाई सिंध कोटरी बैराज हैदराबाद के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। बलूचिस्तान में नसीराबाद, सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी 8 रोज गुजरने के बाद भी कम नहीं हो सका। जमा पानी के बाइस बीमारियां फैलने का खदशा है। सड़क किनारे मौजूद बेघर सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। और सक्खर के बागड़जी कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में जमीन की तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम, 7 डाकू हलाक हो गए हैं। इलाका कई घंटों तक मैदानी जंग बना रहा। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू कत्ल, डकैतियों और पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में मतलूब थे।
सखर पुलिस के मुताबिक बागड़जी के कच्चे में जमीन की तनाज़े पर डाकुओं के 2 ग्रुपों में मुसल्लत तसादुम के नतीजे में 7 डाकू हलाक हो गए। हलाक डाकुओं में 3 सगे भाई भी शामिल हैं। डाकुओं के 2 ग्रुपों में जमीन पर पुराना तनाज़ा चला आ रहा है। पूरा इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। हलाक होने वाले डाकू कत्ल, डकैतियों और पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में मतलूब थे। और भक्कर में मुसाफिर बस की कार को टक्कर के नतीजे में कार सवार 6 अफराद जाँ भाग हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुनकेरा झंग रोड पर मुसाफिर बस सामने से आने वाली कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ भाग और एक खातून जख्मी हो गई। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मुतासरा खानदान का ताल्लुक मियां वाली से है। आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में एक शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को घर में यरगबान बना लिया। 6 घंटों बाद खातून और 3 बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक चक झुमरा में एक शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को असलहे के जोर पर घर में यरगमाल बनाया। पुलिस ने कार्रवाई करके 2 घंटे में 2 बहन भाई को बाजियाब किया, जबकि 6 घंटे में खातून एक बच्ची को बाजियाब करवा लिया। यरगमाल बनाने वाले शख्स को असलहे समेत हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अबरार जहनी मरीज और नशे का आदी है। पाकिस्तानी बरामदात मुल्क की जीडीपी का सिर्फ 12% हैं। ये शरह खित्ते में सबसे कम है। डिफ़ॉल्ट करने वाले मुल्क श्रीलंका की बरामदात का हजम जीडीपी के 30% के बराबर है, लेकिन पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा नहीं हो सका। इदारा शुमारियात के मुताबिक फिलीपींस, मिस्र, बांग्लादेश भी बरामदात में पाकिस्तान से आगे हैं। भारत की बरामदात भी जीडीपी के 24% तक पहुँच गई है। मिस्र बरामदात में सबसे आगे है, बरामदात जीडीपी के 30, फिलीपींस की बरामदात जीडीपी के 22 और बांग्लादेश की मजमूई बरामदात जीडीपी के 16% के बराबर है। पाकिस्तानी बरामदात गुज़िश्ता 13 सालों से खित्ते के दीगर ममालिक से पीछे हैं। पाकिस्तानी लेबर पैदावारी सलाहियत में भी खित्ते के सब ममालिक से पीछे हैं। लेबर पैदावार में श्रीलंका बांग्लादेश से भी पाकिस्तान से आगे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी मुआहिदा करना भी जानती है, अमल करवाना भी जानती है। लाहौर में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IPPs, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ के मामले पर हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुआहिदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे। अगर हम तसादुम का रास्ता इख्तियार कर लेते, खबरें बन जाती, मीडिया पे शोर हो जाता, लेकिन IPP का इशू एक तरफ, बिजली का मामला और दूसरी तरफ, पेट्रोल की कीमत तीसरी तरफ और तनख्वाहदार तबके का टैक्स किसी चौकी तरफ फेंक दिया जाता। सारी लड़ाई जमात इस्लामी और हुकूमत की होती, लोग जख्मी होते, शेलिंग होती, पुलिस से टकराव होता और टाएं फिश हो जाता। हमने इस साजिश को नाकाम किया, पुरअमन तरीके से धरना दिया। हुक्मरान मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको हमने बार बार मजबूर किया कि वो आए और एक ऐसी दस्तावेज उनके दस्तखतों से बन गई है कि अब उन्हें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोई अगर ये समझता हो कि ये मुआहिदा कागज का एक टुकड़ा है, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि ये आपने किसी और जमात से मुआहिदा नहीं किया है, ये मुआहिदा आपने जमात इस्लामी के साथ किया है। और जमात इस्लामी मुआहिदे करना भी जानती है, मुआहिदों पे अमल करवाना भी जानती है। और जिस वक्त ये मुआहिदा हुआ था 45 दिन की बात हुई थी और आज 42 दिन बाकी रह गए हैं। एक एक दिन हम गिन रहे हैं और एक एक दिन हम इसका ताक़ुब कर रहे हैं। और कराची में अक़लियतों के हकूक़ के आलमी दिन की मुनासबत से अक़लियती हकूक़ मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियतों को दरपेश मुख्तलिफ़ मसाइल को उजागर किया गया। देखिए वक़ास आलम अंगारिया की रिपोर्ट। अक़लियती हुकूक के आलमी दिन के मौके पर कराची में अक़लियती कम्युनिटी की जानिब से अक़लियती हुकूक मार्च का इनेकाद फेरियर हॉल में किया गया। तकरीब में टैबलो और थिएटर समेत दीगर फ़नून के ज़रिए अक़लियतों के मसाइल उजागर किए गए। अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं का कहना था कि ये दूसरा अक़लियती मार्च है जिसमें हमारे 11 मुतालबात हैं। मसाइल अब भी वही हैं, बल्कि इनमें इजाफा हो गया है। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी से मसाइल हल होते हैं। जो हमारा एक दिन है साल में, उसको यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे कुछ इश्यूज़ हैं इस मुल्क में, उस इश्यूज़ को हम रेस कर रहे हैं, हम मसले अपने रेस कर रहे हैं। मज़ीद नफ़रत तासुब बढ़ता चला जा रहा है। हमारी जो बेसिक डिमांड है वो बराबर का शहरी होने की है। सिख कम्युनिटी की 70 साल से कोई पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है, तो हमारे मसले कैसे हल होंगे? जब कानून में, लेजिस्लेशन में हमारी तरामीम नहीं होंगी, वहाँ पे हमारे मसले एड्रेस नहीं किए जाएंगे, तो हमारे मसले कैसे हल होंगे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर ने मुलाकात की।
वज़ीर आज़म ने कहा कि आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एज़ाज़ है। इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम ने शाह सलमान और दीगर सऊदी क़यादत की नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। और ज़िला खैबर में ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई है। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त 2024 को ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शदीद ज़ख्मी हो गए थे। आज उनकी शहादत CMH पेशावर में हुई। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, शहीद के लवाहिकीन और अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को उनके आबाई शहर में पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। 24 साल के लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद का ताल्लुक ज़िला अटक से था। ISPR का कहना है कि 9 अगस्त को ज़िला खैबर की वादी तीरा में 3 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। बाग के एक मकाम पर लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से मुकाबला के दौरान 4 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान वो शदीद ज़ख्मी हो गए और CMH पेशावर में ज़ेर इलाज थे, जहाँ ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं और हमारे बहादुर अफसरान और जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मुस्तहकम करती हैं। और सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को पार्टनरशिप की पेशकश कर दी है। कहा कि सिंध की हुकूमत उन्हें दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज़ हक दे तो पीपल्स पार्टी के पार्टनर बन सकते हैं। और अंगी टाउन में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि MQM को वफाक में हिस्सा नहीं मिला। सूबाई और शहरी हुकूमत भी उनकी नहीं है, लेकिन MQM अपने हिस्से का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं पीपल्स पार्टी की क़यादत को कि देखिए, अगर MQM खुदा न खास्ता MQM जिन इलाकों में है वहां से हारती है, वहां से पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन जीतेंगे। हम अगर जीतते हैं तो हमारे पास कोई वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं है। आपको हमने जाकर वोट लेना है, वजीर आजम के कैंडिडेट के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई और जीतेगा तो उनका अपना वजीर आजम का कैंडिडेट है, वो फिर आपको वोट नहीं देगा। हमारे पहले पार्टनर आप बने। क्या जरूरत है मुझे जाकर किसी और सूबे में जाकर किसी से बात करूं? अगर आप मुझे मेरा जायज हक देंगे तो हम एक दूसरे के पार्टनर बन सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है कहीं और जाने की। जापान में जुमेरात को आने वाले 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद हुकाम ने आइंदा चंद वर्षों में सदी के सबसे ख़तरनाक ज़लज़ले की वार्निंग दी है, जिसकी शिद्दत 8 और 9 हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक मेगा थ्रस्ट ज़लज़ला अक्सर जोड़े में आता है, जिसमें से एक जुमेरात को आ चुका है। आखिरी बार इस तरह का ज़लज़ला 1944 और 1946 में आया था। हुक्काम की जानिब से वार्निंग दिए जाने के बाद जापानी वज़ीर आज़म ने आइंदा हफ्ते अपना वस्ती एशिया का दौरा मुलतवी कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंतज़ामात का भरपूर बंदोबस्त और राब्तों को मौसर रखा जाए। जैकबाबाद में भी 77वें यौम आज़ादी 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम स्टॉल्स पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई है। शहरी किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, मज़ीद देखते हैं मुकेश रुपेता की इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त को भरपूर और शायान और शान तरीके से मनाने के लिए जैकबाबाद शहर भर में दर्जनों दुकानों पर सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों की बहार आ गई है, जबकि शहरी जश्न आज़ादी की खुशी मिली जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अपने बच्चों को जो सो बैनर वगैरह टोपियाँ पहना के हम भरपूर नमूने से एक खुशी का समा होता है हमारे घरों में, और हम पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से भरपूर खुशी मनाते हैं और हम ममनून हैं पाकिस्तान आर्मी के और उन तमाम इदारों के जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। जैकबाबाद में बसने वाली अक़लियती बरादरी भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए अपने घर